My dear students, welcome to Mathological. In this session, we will be doing questions of linear equations that have appeared in previous examinations of CAT. Start करते हैं session. So the first question is from CAT 2023. For some real numbers a and b, the equations x plus y is equal to 4 and a plus 5 into x plus b square minus 15 into y is equal to 8b has infinitely many solutions for x and y. तो maximum possible value of a b क्या होगा? First equation is x plus y is equal to 4. अच्छा, हर एक क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन अगर अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, एंड देन फाइनली वॉच द सॉल्यूशन. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लीनियर इक्वेशन है. सेकंड इक्वेशन है a प्लस 5 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस 15 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 8b. सेकंड इक्वेशन इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 15 तो एक कॉन्स्टेंट है, ए और बी तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, रियल नंबर्स है. सो देयर आर इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर x एंड y. And if there are two equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 and there are infinitely many solutions, in that case the equations are identical. Identical equations होगी यानी कि a1 by a2 coefficients का जो रेशियो होगा that will be same. a1 by a2 will be equal to b1 by b2 will be equal to c1 by c2. So same should be here as well because infinitely many solutions are there. So 1 by a plus 5 is equal to 1 by b square minus 15 is equal to 4 by 8b और 4 by 8b आ जाएगा हमारा 1 by 2b. अब इस पार्ट को देखो, यहां से इजीली हमें b की वैल्यू निकल आएगी, तो पहले b की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, फिर a की वैल्यू पे बात करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2b विल बी इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 15. सो b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 इज इक्वल टू 0. So this will be b square minus 5b plus 3b minus 15 is equal to 0. यानी कि b plus 3 into b minus 5 this is equal to 0. और अगर b plus 3 into b minus 5 यानी कि product of b plus 3 and b minus 5 is 0, तो either b plus 3 will be 0 यानी कि b will be equal to minus 3 और b minus 5 will be 0 यानी कि b will be equal to 5. तो दो केसेस बनेंगे, b is equal to minus 3 और b is equal to 5. Okay, now focus on first ratio and the last one. बिकॉज अब हमें b की वैल्यू पता चल गया है. सो 1 by a plus 5 is equal to 1 by 2b. So if 1 by a plus 5 is equal to 1 by 2b यानी कि a plus 5 will be equal to 2b. And b can take two values minus 3 और 5. So if b is minus 3 तो 2b हो जाएगा minus 6. If b is equal to minus 3 2b हो जाएगा minus 6. So a plus 5 will be minus 6. और यहां से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a will be equal to minus 11 at b is equal to minus 3. Second case will be when b is equal to 5. If b is equal to 5, 2b आ जाएगा 10. So a plus 5 is equal to 10. तो यहाँ से a will be equal to 5. तो either b is equal to 5 and a is equal to 5 और b is equal to minus 3 and a is equal to minus 11. और हमें चाहिए maximum possible value of a into b. a into b का maximum possible value. तो first case में value आएगा a into b का क्या आएगा? minus 3 into minus 11 will be plus 33. और second case में 5 into 5 will be 25. So maximum possible value is when both are negative 33. Option C is the answer. Option C will be the answer. Clear है? अगर एक भी इनमें से एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है तब तो फिर लोअर वैल्यू आता है, बट सिंस बोथ आर नेगेटिव तो फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है और प्रोडक्ट उसी केस में मैक्सिमम आ रहा है. क्या ये क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, वेरी डूएबल क्वेश्चन इन द एग्जाम कंडीशंस, इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ठीक है. Next question. In an examination, there were 75 questions. 3 marks were awarded for each correct answer. 1 mark was deducted for each wrong answer, and 1 mark was awarded for each unattempted question. So there are 3 conditions. If the answer is correct, then 3 marks are awarded. If the answer is incorrect, wrong, then 1 mark is deducted. And if the answer is क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, तब फिर स्टिल 1 मार्क अवार्ड हो जाता है. बढ़िया एग्जामिनेशन. 3 मार्क्स अवार्ड हो रहे करेक्ट आंसर पे, 1 ऑन द रॉन्ग आंसर एंड 1 फॉर द अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन एज वेल. टोटल क्वेश्चंस आर 75. टोटल क्वेश्चंस इन दिस केस आर 75. ठीक है, टोटल क्वेश्चंस आर 75 और एडिशनली रायन स्कोर्ड अ टोटल ऑफ 97 मार्क्स. In the examination, if the number of unattempted questions was higher than the number of attempted questions,
देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स दैट रायन कुड हैव गिवन इन द एग्जामिनेशन. ओके, कंडीशन इज number of unattempted questions is higher. So let us say correct answers are A, wrong answers are B, and unattempted answers are C. Correct A, wrong B, unattempted C. Total is 75. So A plus B plus C. This is equal to 75. Additionally, total marks is 97. 3 marks for the correct answer. तो correct answer के marks हो जाएंगे 3A. -1 for the incorrect. So -1 into B, यानी -B will be marks for the wrong answer. And plus C for the unattempted. So this total is 97. Two equations are there. First is A plus B plus C is equal to 75. Second is 3A minus B plus C, that is equal to 97. ऐड कर दो दोनों इक्वेशंस को, तो ऐड करते ही हमारा B कैंसल आउट हो जाएगा. So 4A plus 2C, this is equal to 172. डिवाइड बाई 2, तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा 2A plus C is equal to 86. और क्वेश्चन में एक एडिशनल कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस इज हायर. अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है C, तो C इज हायर देन attempted questions है A plus B. C is greater than A plus B. टोटल है 75. 75 का हाफ कितना होगा, 37 होगा. यानी कि since C is higher than A plus B, unattempted questions are higher than attempted, तो unattempted questions हमारा 37.5 यानी कि हाफ ऑफ द क्वेश्चन से ज्यादा होगा. यानी कि C का मिनिमम वैल्यू होगा 38. C will be greater than equal to 38. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, या तो कहोगे C is greater than 37. 37 से बड़ा है तो भी डेफिनेटली, क्योंकि इंटीजर होगा नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली तब भी मिनिमम 38 होगा, या फिर C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 38. क्लियर है? अब बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, खत्म हो गया सवाल. 2A प्लस C इज इक्वल टू 86, और हमें पता है कि C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 38, और हमें चाहिए मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स को, यानी कि A को मैक्सिमाइज करना है. तो इफ यू हैव टू मैक्सिमाइज A को मैक्सिमाइज करना है तो C मस्ट बी मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू C का कितना हो सकता है, 38. तो बस C को 38 पुट कर दो. अगर C को 38 पुट करने पे इंटीजर वैल्यू A का आ रहा है तो दैट विल बी द आंसर. अगर नहीं आएगा तो फिर C का नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे. सबसे पहले 38 पुट करोगे, तो C इज इक्वल टू 38 पे 2A विल बी इक्वल टू कितना, 2A विल बी 86 माइनस 38 यानी कि 48. सो A विल बी इक्वल टू 24. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A विल बी 24. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 24 इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इन दिस केस. ओके, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डोनेशन बॉक्स कैन रिसीव ओनली चेक्स ऑफ ₹100, ₹250 एंड ₹500. On one good day, the donation box was found to contain exactly 100 checks amounting to a total sum of ₹15250. Then maximum possible number of checks of ₹500 that the donation box may have contained. इस बार में मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ चेक्स ऑफ ₹500. ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेक्स, ₹100, ₹250, ₹500, और टोटल अमाउंट है हमारा 15250. टोटल चेक्स है 100. पहले करते हैं सेम मेथड से जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन को किया. इसके बाद में फिर ऐसे क्वेश्चंस के लिए अप्रोच सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को. ठीक है, ओके. सो लेट अस से A checks are of ₹100, B checks are for ₹250 and C checks are for ₹500. ठीक है, या तो ऐसे अज्यूम कर सकते हो और फिर इक्वेशन बनाओगे A plus B plus C is equal to 100, या फिर दो वैल्यूज को मान लो और थर्ड वेरिएबल डेफिनेटली 100 माइनस, अगर फर्स्ट A है सेकंड B है तो थर्ड होगा 100 माइनस A माइनस B. तो वैसे भी सोच सकते हो, क्योंकि वहां पे फिर इस इक्वेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगा. ओके, क्या ये क्लियर है? और क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है नंबर ऑफ चेक्स ऑफ ₹500, तो अगर हमें इस तरह से अज्यूम करें कि इंस्टेड ऑफ A B C 3 वेरिएबल मानने के जस्ट 2 वेरिएबल्स अज्यूम करें A एंड B, दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि फिर यहाँ पे इस इक्वेशन की जरूरत हमें स्ट्रेट अवे नहीं पड़ेगी. सो यू कैन अज्यूम दैट A checks are ₹250 के एंड B checks are for ₹500. तो बचे हुए चेक्स कितने होंगे, ₹100 के, यानी 100 माइनस A प्लस B, एंड टोटल अमाउंट इज ₹15250. ओके, मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 इंटू 100 माइनस A प्लस B. सो दिस विल बी 10,000 माइनस 100 इंटू A प्लस B प्लस 250A प्लस 500B, and this is equal to 15250. All the numbers are multiple of 50. ठीक है, तो 50 से तुम डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, बट पहले 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर दो राइट हैंड साइड में लेके जाके. 250A माइनस 100A विल बी 150A.
प्लस 400b एंड दैट इज इक्वल टू 15250 माइनस 10,000 यानी कि 5250. नाउ डिवाइड बाई 50 तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा 3a प्लस 8b इज इक्वल टू 105. 3a प्लस 8b इज इक्वल टू 105. ओके, पहला सॉल्यूशन तो हमें कब दिख रहा है, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमाइज करना है पॉसिबल नंबर ऑफ चेक्स ऑफ ₹500 यानी कि b को मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, 13 8 104 बट b इज इक्वल टू 13 तो सॉल्यूशन होगा नहीं. b इज इक्वल टू 12 पुट करें तो 12 8 96 और फिर बचता है 9 तो 96 प्लस 9 यस. सो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 12 दैट इज अवर सॉल्यूशन जहां पे कि हमें b के मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है. तो दिस विल बी द आंसर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ चेक्स ऑफ ₹500 विल बी इक्वल टू 12. दिस विल बी द आंसर. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो क्वेश्चन तो तुम अप्रोच वैसे भी कर लोगे, इसी क्वेश्चन को 5 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो. 3 वेरिएबल मान लो a b c, फिर पहली इक्वेशन बनाओगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 100. सेकंड इक्वेशन बना के फिर टोटल वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद में इक्वेशंस में देखोगे कैसे तुम सॉल्व करोगे, क्या मल्टीप्लाई करो फर्स्ट इक्वेशन फिर कैसे सबट्रैक्ट करो. या बेटर अप्रोच क्या है, हमें पता है टोटल सम कितना है तो 2 वेरिएबल्स हमने एज्यूम किए, थर्ड को 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग मान लिया यानी कि 100 माइनस a प्लस b मान लिया और फिर उसके बाद में सॉल्व कर लिया. 2 ही वेरिएबल्स बचे हमारे पास. क्वेश्चन हमारे लिए जितना सिंपल अपने लिए कर सको उतना बेटर है, जितना ज्यादा सिंपल कर सको उतना ज्यादा बेटर है. अब इसके बाद जो मैं कह रहा था कि एक अप्रोच समझना, वो समझना ये बात है कि देखो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है डोनेशन बॉक्स, ध्यान से इस बात को समझना, और डोनेशन बॉक्स कैन रिसीव ओनली चेक्स ऑफ 100 250 500. तो 3 हमारे चेक की वैरायटी है, 100 रुपीज 250 रुपीज एंड 500 रुपीज. अब क्वेश्चन ये कह रहा है ऑन वन गुड डे द डोनेशन बॉक्स वाज फाउंड टू कंटेन एग्जैक्टली 100 चेक्स. एग्जैक्टली 100 चेक्स है, टोटल अमाउंट कितना है 15250 का. अब हम ऐसे सोचें, ठीक है, फिलहाल के लिए अलजेब्रा से ना सोच के ऐसे सोचें कि अगर सारे के सारे 100 चेक्स हमारे 100 रुपीज के होते, इफ ऑल द 100 चेक्स वर ऑफ ₹100 ओनली, तो फिर टोटल अमाउंट कितना बनता हमारा 10,000 बनता. टोटल अमाउंट बनता 10,000 बट टोटल अमाउंट हमारा 10,000 थोड़ी है, टोटल अमाउंट है 15250 विच इज 5250 रुपीज एक्स्ट्रा. तो टोटल अमाउंट हमारा क्या है, दैट इज 5250 रुपीज एक्स्ट्रा. ठीक है, इफ ऑल 100 चेक्स वर ऑफ 100 रुपीज ओनली तो अमाउंट होता 10,000 बट एक्चुअल अमाउंट इज 5250 एक्स्ट्रा. एंड व्हाई इज दिस एक्स्ट्रा, बिकॉज नॉट ऑल चेक्स आर ऑफ ₹100, some checks are of ₹250 and some are of ₹500 and that is why total amount हमारा 5250 एक्स्ट्रा है. तो अगर 250 रुपीज के ए चेक्स हैं, 500 रुपीज के बी चेक्स हैं, तो बचे हुए चेक्स कितने होंगे 100 रुपीज के होंगे. बट हमारा कंसर्न सिर्फ बचे हुए 250 और 500 वाले चेक्स है. तो टोटल 250 इंटू ए, दिस इज द अमाउंट, ठीक है, प्लस 500 इंटू बी. ओके, यही तो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है. बट साथ में ये भी समझना है कि एक्स्ट्रा अमाउंट क्यों आ रहा है, बिकॉज 250 रुपीज में 150 रुपीज एक्स्ट्रा है और 500 में 400 रुपीज एक्स्ट्रा है. यही तो बात हुई ना. तो हमारा जो टोटल अमाउंट एक्स्ट्रा होगा वो 250A प्लस 500B नहीं होगा, दैट विल बी 150A. अब या तो यहां पे से माइनस 100 इंटू ए प्लस बी माइनस कर दो बिकॉज उतना एक्स्ट्रा आ जाएगा, या स्ट्रेट अवे लिख दो. सिंस जब हम 250 रुपीज का चेक दे रहे हैं तो 150 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं 100 रुपीज से, क्योंकि 100 के लिए कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया हुआ है. भाई 100 रुपीज के अगर सारे के सारे चेक्स होते तो 10,000 आता. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 250 में, 250 इज 100 रुपीज 150 रुपीज एक्स्ट्रा. तो दो हमारे जो चेक्स बचे 250 रुपीज के और 500 रुपीज के, यहाँ पे एक्स्ट्रा है हमारा 150 रुपीज और यहाँ एक्स्ट्रा है 400. तो अगर ए चेक्स हैं 50 रुपीज के और बी चेक्स हैं 500 रुपीज के, तो 150A प्लस 400B दिस इज इक्वल टू 5250. अब यही सेम इक्वेशन हमारी बन गई जो कि लास्ट क्वेश्चन में बनाई है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बनाई, वही सेम इक्वेशन फाइनली बन गया. बट ये तुमने स्ट्रेट अवे बना लिया इक्वेशन, तुम्हें ये सब लिखना नहीं पड़ा. अगर ये बात समझ लोगे तो यही काम इस इक्वेशन पर डायरेक्टली हम सेकंड्स में पहुंच जाएंगे. बट ये अप्रोच हमारा यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव नहीं है, एक रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है. तो यहाँ ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा रॉन्ग आंसर पे नेगेटिव -1 भी मिल रहा है. दैट इज वाई यहाँ पे ये अप्रोच गड़बड़ करेगा या फंस जाओगे. यहाँ पे कर तो यहाँ पे कर सकते हो बट फंसोगे, ठीक है, गलती करोगे. इसलिए यहाँ पे ऐसी अप्रोच को फॉलो नहीं करना है. बट जहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, प्राइस की बात हो रहा है, क्वांटिटीज की बात हो रहा है, और ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ पे कि हम किसी एक वैल्यू से सारी को सॉल्व करके और फिर अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें ऐसी अप्रोच को फॉलो करना चाहिए. क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ शॉप ओनर बॉट अ टोटल ऑफ 64 शर्ट्स फ्रॉम अ होलसेल मार्केट दैट केम इन 2 साइजेस, स्मॉल एंड लार्ज. द प्राइस ऑफ अ स्मॉल शर्ट was INR 50 less than that of a large shirt. She paid a total of INR 5,000 for the large shirts and total of INR 1,800 for the small shirts. Then price of the large shirt and a small shirt together क्या होगा? Now, अच्छा क्वेश्चन है. अगर इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे तो टाइम ज्यादा खाएगा. तो बेस्ट अप्रोच क्या है, क्योंकि ऑप्शंस गिवन है इस क्वेश्चन में, बेस्ट अप्रोच इज गोइंग बाय द ऑप्शंस. यूज ऑप्शंस.
और अगर ऑप्शंस गिवन नहीं होते तो कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ फिर इसके बाद में समझेंगे, पहले ऑप्शंस को यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है 64, और दो साइज है स्मॉल एंड लार्ज। तो प्राइस के बारे में क्वेश्चन इज सेइंग कि प्राइस ऑफ स्मॉल शर्ट वाज INR 50 लेस देन दैट ऑफ अ लार्ज शर्ट। क्वेश्चन कह रहा है स्मॉल शर्ट का प्राइस लार्ज शर्ट से 50 कम है, बट इसका ये मतलब भी तो हुआ कि स्मॉल शर्ट से लार्ज शर्ट का प्राइस जो है 50 ज्यादा हुआ। इजंट इट सो? तो अगर स्मॉल शर्ट का प्राइस हम P मान लें तो लार्ज शर्ट का प्राइस हो जाएगा P + 50। ठीक है, P and P + 50। ओके, एडिशनली शी पेड अ टोटल ऑफ INR 5000 फॉर द लार्ज शर्ट्स एंड INR 1800 फॉर द स्मॉल शर्ट। टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट फॉर स्मॉल शर्ट्स इज 1800 एंड फॉर लार्ज शर्ट्स इज 5000। अब एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर नंबर ऑफ शर्ट्स परचेज किया तो इधर इंटीजर होगा हमेशा, नंबर ऑफ शर्ट्स तो इंटीजर ही होगा, इजंट इट सो? तो n हमारा नंबर ऑफ शर्ट्स इंटीजर होगा, फ्रैक्शन तो हो नहीं सकता। और अगर n को इंटीजर होना है यानी कि नंबर ऑफ शर्ट्स को इंटीजर होना है तो प्राइस मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ द टोटल अमाउंट, यानी कि P हमारा 1800 का फैक्टर होगा और P + 50 हमारा 5000 का फैक्टर होगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ अ लार्ज शर्ट एंड अ स्मॉल शर्ट टुगेदर क्या होगा, यानी कि हमें वैल्यू क्या गिवन है ऑप्शंस में, P + P + 50। सो 2P + 50 का वैल्यू हमें गिवन है। फर्स्ट केस में वैल्यू क्या है, 2P + 50 का 175। पहले 50 सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 कर लो, वहां से P की वैल्यू आ जाएगा 125/2, यानी कि फर्स्ट केस में वैल्यू आ रहा है हमारा P का 62.5। अब क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है? प्राइस हमारा आ रहा है स्मॉल शर्ट का 62.5, क्या ये फैक्टर है 1800 का? नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर भी नहीं होगा। सेकंड 150 सब्ट्रैक्ट 50, 150 - 50 100/2, यानी P आ रहा है यहां से 50, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है। बट इफ P इज 50 तो 1800/50 कितना हो जाएगा, 36 शर्ट्स होंगे हमारी स्मॉल शर्ट, क्योंकि प्राइस हमारा स्मॉल शर्ट का कितना हो जाएगा 50, और लार्ज शर्ट का प्राइस होगा 50 + 50 100, यानी कि यहां पे हो जाएगा 5000/100, दिस विल बी 50। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स हमारा 36 + 50 यानी 86 आ जाएगा, बट टोटल नंबर तो 64 है, यानी कि ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है, ये भी आंसर पॉसिबल नहीं है। एडिशनली क्योंकि नंबर ऑफ शर्ट्स हमारा ज्यादा आ रहा है, दैट इंप्लाइज कि प्राइस को हमें हाई करना पड़ेगा, तभी नंबर ऑफ शर्ट्स हमारा 64 पहुंचेगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल नंबर तो 64 है। तो यानी कि अगर हमें और ऑप्शंस गिवन होते हैं यहाँ पे, अगर हमने स्टार्ट 150 से किया होता तो हमें ये भी पता होता कि अगर जो हमारा एक्चुअल आंसर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 150 नॉट लेस देन 150। ठीक है, तो डायरेक्शन भी पता चलता है वहां से। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी पे जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है 200 सब्ट्रैक्ट 50 150/2 75, तो P इज इक्वल टू आ गया 75। अब क्या 75 फैक्टर है 1800 का? बिल्कुल फैक्टर है, 75 बिल्कुल फैक्टर है, बिकॉज 75 × 4 क्या होता है 300 होता है। तो 1800/75 करोगे, आ जाएगा वैल्यू हमारा 24, और 5000 में क्या डिवाइड करोगे 75 + 50 यानी 125, ये भी फैक्टर है, क्लियरली 40 आंसर आ रहा है, 40 + 24 यानी कि 64 आ रहा है, दिस इज मैचिंग। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आ रहा है कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन में पहली चीज ये है कि हमें सबसे कम वेरिएबल्स मानने हैं, जब हमें सॉल्व भी करना है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। ओके, ठीक है, ऐसा नहीं करना है स्मॉल शर्ट का हमने प्राइस मान लिया x, लार्ज शर्ट का प्राइस मान लिया y, फिर अलग से एक क्वेश्चन लिखा कि x इज y + 50, है कि नहीं? तो फिर वो नहीं, लार्ज शर्ट का प्राइस y माना था तो यानी कि y इज इक्वल टू x + 50। ठीक है, तो ऐसे नहीं करोगे, वेरिएबल्स अपने कम से कम मानने हैं। जो भी क्वेश्चन में रिलेशनशिप दिया है पॉसिबल है तो साथ में ही उस चीज को लिख दो, वेरिएबल मानते समय ही उस चीज को एज्यूम कर लो, उन सारी की सारी चीजों को लिख दो अपने एंड पे। नहीं पॉसिबल हो तो फिर तो प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा, जहाँ पे इनइक्वालिटीज होगा या और कंडीशन होगा वहां पे प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है? अब इसके बाद में इस क्वेश्चन को कन्वेंशनली कैसे सॉल्व करेंगे, जबकि हमें ऑप्शंस नहीं गिवन होंगे, तो भी समझते हैं। वो मेथड भी आना चाहिए, वो मेथड भी पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो शुरुआत की कहानी तो सेम ही है कि स्मॉल शर्ट और लार्ज शर्ट, प्राइस इज P एंड P + 50। ओके, ठीक है, अब मान लिया कि नंबर हमारा जो शर्ट्स का है वो है, स्मॉल शर्ट का है S और लार्ज शर्ट का है L। ठीक है, इसको हटाएंगे इसलिए भी S और L मान लिया है, इसको अभी रिमूव करेंगे। S + L आ रहा है हमारा 64, और टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है हमें? टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू, टोटल अमाउंट हमारा कितना खर्च हुआ है 1800 इन स्मॉल शर्ट एंड लार्ज शर्ट में खर्च हुआ है 5000। सो प्राइस ऑफ स्मॉल शर्ट इज P, तो नंबर ऑफ शर्ट्स यानी कि S क्या आ जाएगा, S विल बी इक्वल टू 1800/P। सिमिलरली L विल बी इक्वल टू 5000/P + 50, और S + L है 64। पुट कर दो वैल्यूज, तो 1800
बाई पी प्लस 5000 बाई पी प्लस 50, दिस इज इक्वल टू 64। अब अगर तुम रिकॉल कर पा रहे हो तो क्या ये लगभग वैसा ही क्वेश्चन नहीं है जैसे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में जब बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस करते हैं वहां पे सॉल्व करते हैं, या जब रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस करते हैं S1 प्लस S2 S1 माइनस S2, कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे हम अप्रोच क्या करेंगे, वी शुड बी डिवाइडिंग दिस, सबसे पहले डिवाइड करके उसको जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना सिंप्लीफाई करते हैं। तो 1800 और फिर 5000 में 4 से डिवाइड कर सकते हो, 8 से भी डिवाइड कर सकते हो, 8 से डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8 और 8 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन हमारा बन जाएगा 225 बाई पी प्लस 625 बाई पी प्लस 50 इज इक्वल टू 8। ओके, अब चाहो तो क्वाड्रेटिक बना के क्वेश्चन में समय खराब करो, बट बेटर अप्रोच क्या है, 225 बाई पी आ रहा है हमारा पहला नंबर, सेकंड नंबर है 625 बाई पी प्लस 50। तो 99% केसेस में, ऐसे केसेस में क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या है, सम इंटीजर आ रहा है, 99% केसेस में दिस वैल्यू विल आल्सो बी इंटीजर एंड दिस वैल्यू विल आल्सो बी इंटीजर, बोथ विल बी इंटीजर। और अगर 225 बाई पी हमारा इंटीजर है, इन दैट केस पी मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ 225, पी विल बी ए फैक्टर ऑफ 225 और पी प्लस 50 एक फैक्टर होगा 625 का, पी एक फैक्टर होगा 225 का और पी प्लस 50 फैक्टर होगा 625 का। अब कोई भी एक रैंडम वैल्यू, रैंडम फैक्टर एज्यूम कर लो। अगर तुमने पी को मान लो 15 एज्यूम किया, ठीक है, तुमने लिया पी इज इक्वल 15, तो जैसे ही तुम पी इज इक्वल 15 लोगे तुम्हें पता है 225 बाई 15 आ जाएगा, 225 बाई 15 आ जाएगा 15, और हमें चाहिए अपना सम 8। अगर एक ही वैल्यू 15 आ जा रहा है तो डेफिनेटली टोटल सम तो हमारा 8 से बहुत बड़ा आएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता। यानी कि हमें पी की वैल्यू को अभी और बड़ा लेना पड़ेगा, 15 के बजाय 50 ले लो, बट 50 हमारा फैक्टर नहीं है। 25 ले लो, 25 लोगे 225 बाई 25 विल बी इक्वल टू 9, यानी कि 225 लेते ही हमारा वैल्यू आ जाएगा 9। अगेन दिस इज मच लार्जर देन 8, यानी कि ये भी काम करेगा नहीं। 45 ले लो, बट 45 लोगे तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू पी प्लस 50 आ जाएगा 95, जो कि 625 का फैक्टर नहीं, यानी 45 नहीं काम करेगा यहाँ पे। 75 ले लो, तो इफ यू टेक पी इज इक्वल टू 75 तो 225 बाई पी विल बी इक्वल टू 3 और 625 बाई 125 विल बी इक्वल टू 5, 3 प्लस 5 आ जाता है 8। सो डेफिनेटली हमारा यही आंसर होगा दैट पी मस्ट बी इक्वल टू 75, और अगर पी 75 है तो पी प्लस 50 होगा 125, टोटल सम विल बी इक्वल टू 100। ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शंस गिवन थे, बट ऑप्शन अगर नहीं गिवन होते तो भी हम डेफिनेटली इजीली आंसर को मार्क कर देते। क्या है क्लियर? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, सो समझ रहे होगे कैसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एग्जाम में। बाकी समय खराब करने के तरीके बहुत सारे हैं, समय बचाने के तरीके जितने अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा बेनिफिट होगा, और क्वेश्चन में फंसोगे भी नहीं एग्जाम में, क्योंकि जितना अपना कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग को इजी रखोगे उतना ही ज़्यादा इस चीज़ का पॉसिबिलिटी रहेगा दैट यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर ग्रेटर देन 100 एंड इंक्रीज बाय 198 व्हेन द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। तो सारे के सारे 3 डिजिट नंबर वैसे तो ग्रेटर देन 100 ही होते हैं। ओके, सो ऐसे कितने नंबर्स होंगे विच इंक्रीज बाय 198 व्हेन द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। इंक्रीज कर रहे हैं 198 से, तो जैसे इनिशियल नंबर हमारा है ABC एंड आफ्टर द रिवर्सल ऑफ डिजिट्स द नंबर इज CBA। ओके, सो ABC यानी कि नंबर हमारा क्या हो गया 100A प्लस 10B प्लस C, दिस इज द नंबर इनिशियल नंबर, इनिशियल नंबर, और रिवर्स करने के बाद नंबर विल बी 100C प्लस 10B प्लस C आफ्टर रिवर्सल। और क्वेश्चन कह रहा है इंक्रीज कर रहा है 198 से, यानी कि आफ्टर रिवर्सल वाला नंबर माइनस इनिशियल नंबर दैट इज 198, यानी कि CBA माइनस ABC इज 198 या 100C प्लस 10B प्लस A माइनस 100A प्लस 10B प्लस C दैट इज 198। ओके, लिख दो, लिख दो इस बात को। सो दिस इज इक्वल टू 198। अब 100C में से C जाएगा, 99C बचेगा, A में से 100A जाएगा, 99A बचेगा, और 10B से 10B तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। सो बच गया हमारा 99 इंटू C माइनस A, दिस इज इक्वल टू 198। 99 से 2 टाइम्स जाएगा तो इक्वेशन हमारा सिंपल हो गया, C माइनस A इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर इक्वेशन। और अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या आदमी बुलवाने पड़ेंगे कहीं से? क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे? ठीक है, C माइनस A इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा ना, सिंपल हो गया।
बट क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? क्वेश्चन की कंडीशन हमारी ये है कि ए मस्ट बी अ पॉजिटिव नंबर। ए जीरो तो नहीं हो सकता, एक डिजिट है बट जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज 3 डिजिट नंबर होना है हमारा एबीसी। साफ साफ करें ना, ग्रेटर देन 100, ए को जीरो नहीं ले सकते, तो ए का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ए का मिनिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। और मैक्सिमम कितना आ सकता है? मैक्सिमम वैल्यू के लिए सी पे कंडीशन देखोगे, बिकॉज सी का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? सी माइनस ए 2 है, तो जब ए 1 होगा सी विल बी 3, जब ए 2 होगा सी विल बी 4, जब ए 3 होगा सी विल बी 5, जब ए 4 होगा सी विल बी 6, देन सी कैन बी 7, 8 एंड 9, तो ए आ जाएगा 5, 6 एंड 7। बेसिकली यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस मिल गए हमको? 7 सॉल्यूशंस मिल गए। और टीटा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे गलती होने का क्या स्कोप है? तुमने मार्क कर दिया 7 और फिर क्वेश्चन हो गया गलत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 7 सॉल्यूशंस तो मिले, दैट इज करेक्ट, कोई गलती नहीं है यहाँ तक। बट जो कट गया उसको भूल जाओगे क्या? बी जो कैंसिल आउट हो गया है, क्या इसको भूल जाओगे क्या? ये बेचारा भी तो है, इसके बारे में भी ध्यान रखोगे ना। तो हमारा ए और सी के वैल्यूज तो मिल गए हमें कि ए कैन बी 1 एंड सी कैन बी 3, या ए कैन बी 2, सी कैन बी 4 एंड सो ऑन, ऐसे 7 वैल्यूज मिल गए। बट बी तो कोई भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि बी तो कैंसिल आउट हो रहा है, बी की वजह से फर्क पड़ेगा ही नहीं। सो बी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। बी कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 9, यानी कि 7 into 10, टोटल सॉल्यूशंस आ जाएंगे 70 नंबर्स विल बी देयर, 70 नंबर्स विल बी देयर। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लें, तो अगर हमने लेटर से सी को ले लिया 2, ए को ले लिया 2 और सी को ले लिया 4, तो नंबर हमारा हो गया 2, और बी को कुछ भी ले लो 254। अब रिवर्स कर दो तो नंबर आ जाएगा 452। सब्ट्रैक्ट कर दो लार्जेस्ट में से स्मॉलर को, तो नंबर डिफरेंस आ जाएगा 198 का। क्लियर है? आंसर आ गया हमारा 70 सच नंबर्स विल बी देयर। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है, ठीक है, तुम्हें लगे कि कहीं पे तुम फंस रहे हो, अटक रहे हो, तो एक बार कमेंट में मेंशन कर देना कि सर यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे समझ में नहीं आया। एडिशनली यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम। ठीक है, तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट है, कोई कंसर्न है, कोई क्वेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A basket of 2 apples, 4 oranges and 6 mangoes cost the same as a basket of 1 apple, 4 oranges and 8 mangoes, or a basket of 8 oranges and 7 mangoes। तो एक बास्केट हमारा बनाओ, या तो 2 एप्पल्स का, 4 ऑरेंजेस का एंड 6 मैंगोज का, तो कॉस्ट उतना ही आने वाला है जितना की कॉस्ट तब आएगा when there is a basket of 1 apple, 4 oranges and 8 mangoes, या फिर when there is a basket of 8 oranges and 7 mangoes, सबका कॉस्ट सेम है। तो 2 एप्पल्स प्लस 4 oranges प्लस 6 mangoes, the cost is same as the cost of 1 apple plus 4 oranges plus 8 mangoes, and that cost is same as when there are 8 oranges and 7 mangoes। देखो, हमेशा जब भी ऐसा इक्वेशन बना रहे हो तो इक्वेशन तो अपनी जगह पे है, बट अपना दिमाग भूल नहीं जाना है, उसको कहीं पे घर पे रख के नहीं आना है। ऐसे समझो कि फर्स्ट केस में क्या है, देयर आर 2 एप्पल्स इन द बास्केट, 4 ऑरेंजेस इन द बास्केट एंड 6 मैंगोज इन द बास्केट। सेकंड केस में ऑरेंजेस तो सेम ही है। एप्पल क्या हुआ? एप्पल 2 की बजाय हो गया 1, और मैंगोज हो गया 6 की बजाय 8। एप्पल्स 2 की बजाय 1 हो गया और मैंगोज हो गया 6 की बजाय 8। अब यही सब्ट्रैक्ट करके भी रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, यही समझ के भी मिलेगा कि देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड दिस, कि अगर एक एप्पल हमारा कम हुआ है और 2 मैंगोज बढ़े हैं और कॉस्ट सेम रहा है, दैट इंप्लाइज कि 1 एप्पल का कॉस्ट मस्ट हैव बीन सेम एज 2 मैंगोज का कॉस्ट, बिकॉज ऑरेंजेस तो सेम है दोनों केसेस में। अगर ऑरेंजेस भी डिफरेंट होते तब फिर प्रॉपर्ली क्वेश्चन बना के ही सॉल्व करते, बट अगर क्वेश्चन हमें कैट में ऐसा बना के दे रहा है ताकि तुम समझ के भी उसको आंसर कर सको बिना इक्वेशन बनाए हुए, तो फिर उस चीज को यूज को नहीं करना है। ठीक है, यानी कि 1 एप्पल का कॉस्ट डेफिनेटली इज इक्वल टू 2 मैंगोज का कॉस्ट। ओके, क्या ही क्लियर है? ठीक है, और अगर फर्स्ट और लास्ट केस को कंपेयर करो तो फर्क क्या पड़ रहा है? 2 एप्पल्स खत्म हो गए, एप्पल्स तो बचे ही नहीं, तो 2 एप्पल्स का कॉस्ट इज सेम एज ऑरेंजेस हमारे 4 एक्स्ट्रा हो गए और मैंगोज 1 एक्स्ट्रा हुआ है, यानी कि 2 एप्पल्स का कॉस्ट इज सेम एज 4 ऑरेंजेस प्लस 1 मैंगो। और हमें पता है कि 1 एप्पल का कॉस्ट इज इक्वल टू 2 मैंगोज का कॉस्ट, यानी कि 2 एप्पल्स का कॉस्ट बराबर होगा 4 मैंगोज के कॉस्ट के। तो 4 ऑरेंज प्लस 1 मैंगो का कॉस्ट इज इक्वल टू 4 मैंगो का कॉस्ट। 1 मैंगो को लेके जाओ राइट हैंड साइड में, तो 3 मैंगोज बचे हमारे, 4 ऑरेंजेस बचे, 4 ऑरेंजेस का कॉस्ट इज इक्वल टू 3 मैंगो का कॉस्ट। क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्योंकि यहां तक अगर बात समझ में आती है तो हमें रेशियो मिल गया, यानी कि ऑरेंज और मैंगो की कॉस्ट का रेशियो क्या होगा? 3:4। 3:4 होगा एप्पल, ऑरेंज और मैंगोज। तो ऑरेंज की कॉस्ट अगर 3 रुपीज है, मैंगो की कॉस्ट होगी 4 रुपीज। ओके, और एप्पल की कॉस्ट क्या होगा? क्योंकि एक एप्पल का कॉस्ट इज इक्वल टू 2 मैंगोज का कॉस्ट, यानी कि दिस विल बी 4 × 2 8।
बट ये सब तो तब निकालना पड़ता है जब क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा होता है। क्वेश्चन तो बहुत आसान चीज पूछ रहा है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट। नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द बास्केट्स दैट आर गिवन। तो मैं गिवन बास्केट्स क्या है, बास्केट्स क्या है, पहली बास्केट को ही ले लो, 2 एप्पल्स है, 4 ऑरेंजेस है और 6 मैंगोज है। तो हमें पता है 2 एप्पल्स, 1 एप्पल का कॉस्ट इज इक्वल टू 2 मैंगोज, यानी कि 2 एप्पल्स की जगह तुम 4 मैंगोज ले लो, तब भी प्राइस उतना ही रहने वाला है, कॉस्ट तब भी उतना ही रहने वाला है। और 4 ऑरेंजेस का कॉस्ट इज इक्वल टू 3 मैंगोज, तो अगर 4 ऑरेंजेस की जगह 3 मैंगोज ले लो तब भी कॉस्ट उतना ही रहेगा। और 6 मैंगोज तो वैसे ही ले रहे हो, टोटल कितने मैंगोज ले पाए हो सेम कॉस्ट से, 4 + 3 + 6 दैट इज 13। तो ऑप्शन ए विल बी द आंसर। ठीक है, तो जैसे यहां पे पहुंचे, इसके बाद की कहानी सिंपल है इस क्वेश्चन। अगर ज्यादा फंसाता क्वेश्चन तो फिर ये यूज करते कि एप्पल, ऑरेंज और मैंगो का हमने रेशियो निकाल लिया कॉस्ट का, अकॉर्डिंगली हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है इनिशियल। फिर क्वेश्चन जो भी कंडीशन कहता है उसको सॉल्व करते। लेटर से कहता है कि हमें दिया होता टोटल कॉस्ट इतना आ रहा है, तो एक एप्पल का कॉस्ट क्या होगा, एक ऑरेंज का कॉस्ट क्या होगा, या 4 एप्पल 5 ऑरेंज 7 मैंगोज का कॉस्ट कितना होगा, कुछ भी पूछता क्वेश्चन हम इजिली आंसर कर पाते। क्या ये क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, next is for a 4-digit number, the sum of its digits in the thousands, hundreds and tens place is 14. Sum of its digits in the hundreds, tens and unit place is 15, and the tens place digit is 4 more than the unit place digit. Then highest possible 4-digit number क्या होगा that satisfies the above condition. Condition satisfy करने वाला highest possible 4-digit number. तो लेटर से नंबर है हमारा ABCD। नंबर एज्यूम कर लेते हैं अपना ABCD। And since we have to maximize this number ABCD, तो अगर नंबर को मैक्सिमाइज करना है तो कौन सी डिजिट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्रूशियल है, थाउजेंड्स वाला डिजिट। लेकिन नंबर तब मैक्सिमाइज होगा जबकि ए मैक्सिमाइज हो। हाँ, अगर ए मैक्सिमाइज हो जाए उसके बाद में BCD पे फर्क पड़ रहा हो तो फिर हमें बी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट डिजिट हमारा है थाउजेंड डिजिट, अगर ए ही मैक्सिमम नहीं है तो बाकी डिजिट को कितना ही मैक्सिमम कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ए पे। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ इट्स डिजिट्स इन द थाउजेंड्स, हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस इज 14। तो बनाते हैं इक्वेशन, यानी कि a is थाउजेंड प्लेस डिजिट प्लस b प्लस c, दिस इज इक्वल टू 14, while the sum of digits in the hundreds यानी कि b प्लस टेंस यानी c प्लस यूनिट यानी d, दिस इज इक्वल टू 15। a प्लस b प्लस c है 14, b प्लस c प्लस d है 15। ओके, क्लियर है? और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड में से फर्स्ट को, यानी कि d माइनस a इज इक्वल टू 1। तो d will be equal to a plus 1, d will be equal to a plus 1, isn't it so? है कि नहीं? फिर थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है टेंस प्लेस डिजिट इज 4 मोर देन द यूनिट प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट इज 4 मोर देन यूनिट प्लेस डिजिट, और टेंस प्लेस डिजिट है c, यानी कि c इज 4 मोर देन d, तो d प्लस 4, c इज d प्लस 4 और d है हमारा a प्लस 1, तो c हमारा हो जाएगा a प्लस 1 प्लस 4, यानी कि c हो गया a प्लस 5। ओके, नंबर है ABCD। अब C हो गया a प्लस 5 और C भी तो सिंगल डिजिट है, तो अगर C सिंगल डिजिट है और हमें a को मैक्सिमाइज करना है तो a कितना मैक्सिमम हो सकता है, जबकि C भी a प्लस 5 है, तो अगर C a प्लस 5 है तो a कैन एट मैक्स भी इक्वल टू 4, बिकॉज 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 हो जाएगा। अगर तुमने a को 5 कर दिया तो 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, बट C तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो क्या 10 होना पॉसिबल है? C 10 तो नहीं हो सकता ना, यानी कि ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि a मैक्सिमम कैन बी इक्वल टू 4। बट क्या a इक्वल टू 4 सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन की कंडीशन को कि नहीं करेगा? उसके लिए a इक्वल टू 4 पुट करके देखो। तो जैसे ही तुम a इक्वल टू 4 पुट करोगे c हो जाएगा इक्वल टू 9, और d क्या है, d है a प्लस 1 एंड d हो जाएगा 5, और a प्लस b प्लस c है 14। सो b की वैल्यू क्या होगा, a प्लस c आ गया 13, b विल बी इक्वल टू 1, नंबर आ गया हमारा 4195। 4 से बड़ा a हो नहीं सकता, तो दिस विल बी मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर, मैक्सिमम वैल्यू 4195। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अगर इंस्टेंट क्वेश्चन पूछता टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने बनेंगे, तो फिर क्या करते हैं, ए को हमने 4 रखा है, 3 रख सकते थे, 3 रख के भी देख लो, ए आ जाएगा 3, सी आ जाएगा 8, डी आ जाएगा 4, और ए प्लस बी प्लस सी है 14, यानी कि बी कितना आ जाएगा, ए प्लस सी है 11, तो बी आ जाएगा 3। नेक्स्ट केस में ए विल बी 2, सी विल बी 7, डी विल बी 3, और बी आ जाएगा 5। फिर ए कैन बी 1 और बी आ जाएगा 7, सी आ जाएगा 6 और डी आ जाएगा 2, 1762।
ओके, और क्योंकि 4 डिजिट नंबर है तो डेफिनेटली ए जीरो तो नहीं हो सकता, तो यही हमारे 4 पॉसिबल नंबर्स हैं। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस पूछ रहा तो दीज आर द पॉसिबल केसेस। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सारे पॉसिबल केसेस आ गए हमारे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट k be a constant, the equation kx plus y is equal to 3 and 4x plus ky is equal to 4 have a unique solution if and only if। तो अगर दो इक्वेशंस है हमारे पास a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 and that is equal to 0, तो अगर रेशियो हमारा कोफिशिएंट्स का इक्वल है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, तब तो इनफाइनटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। बट अगर रेशियो इक्वल नहीं है, यानी a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। एंड इफ दिस इज नॉट इक्वल, और c1 by c2 तो वैसे इक्वल नहीं है, सो इफ दिस इज नॉट इक्वल तो यहां पे यूनिक सॉल्यूशन आएगा। a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, यानी कि यहां पे हमें डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। बिकॉज अगर रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल है तो लाइंस हमारी क्या होंगी, पैरेलल लाइंस हमारी कोइंसिडेंट हो जाएंगी, ऐसे केस में तो कोइंसिडेंट हो जाएंगी। अगर जस्ट इन केस हो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो इस केस में लाइंस पैरेलल होंगी, यानी कि नो सॉल्यूशन। बिकॉज जब कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ नो सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या है, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, तो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी कि k by 4 शुड नॉट बी इक्वल टू 1 by k, a1 by a2 not equal to b1 by b2, and that implies that k square will not be equal to 4, k square will not be equal to 4। और अगर k स्क्वायर को 4 के बराबर नहीं होना तो k हमारा अगर 2 होगा तब भी प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए, और -2 होगा तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी तो 4 हो जाएगा। दैट इज वाई k विल नॉट बी इक्वल टू 2 और -2, ना तो 2 होगा ना ही -2 होगा, ठीक है। सो k विल नॉट बी इक्वल टू 2 और -2, एंड हेंस मॉड k विल नॉट बी इक्वल टू 2, बिकॉज अगर मॉड k 2 के बराबर नहीं है, यानी कि k ना तो 2 है ना ही -2 है। ऑप्शन ए विल बी द आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी वन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन ए कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। क्लियर है? साथ में वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के नॉट इक्वल टू 2, तो पर क्या के अगर इक्वल टू 2 नहीं है तो क्या वी आर श्योर कि क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन होगा? भाई के चलो 2 नहीं हुआ, बट अगर के इक्वल टू -2 हो गया तो तब भी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, तब भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट इज वाई दिस इज नॉट इफ एंड ओनली इफ। के इक्वल टू 2 नहीं भी है तब भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा अगर के इक्वल टू -2 हो गया। दैट इज वाई व्हेन के इज नॉट इक्वल टू mod of k is not equal to 2, तब वी आर सर्टेन दैट देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर श्योर। के की वैल्यू कुछ भी और क्यों ना हो, क्योंकि 2 और -2 नहीं है, कुछ भी और होगी तो डेफिनेटली इक्वल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स x, y satisfying x greater than equal to y, y greater than equal to -20 and 2x plus 5y is equal to 99। 2x plus 5y is equal to 99, तो क्या आंसर होगा हमारा? टू एक्स प्लस 5y is equal to 99 and x is greater than equal to y and y is greater than equal to -20। सबसे पहले पहला सॉल्यूशन निकाल लो, कोई भी एक सॉल्यूशन निकाल लो। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, इफ यू टेक लेट अस से 19 5 95, तो y को 19 ले लो, y is equal to 19 पे 95 तो हो गया, 4 बचा तो x will be equal to 2। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड सॉल्यूशन क्या आएगा, सेकंड सॉल्यूशन विल डिपेंड ऑन कोफिशिएंट ऑफ y, तो +5 कर दो, 2 + 5 7 आ जाएगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पे डिपेंड करेगा, तो 19 - 2 17 आ जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा 7 + 5 12, और यहाँ 17 - 2 15 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 12 + 5 17, और 15 - 2 13। हमें चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू y और y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -20। अब पहले 3 जो सॉल्यूशन है हमारे, यहाँ पे x इज लेस देन y, x तो लेस देन y आ रहा है। फोर्थ सॉल्यूशन इज द फर्स्ट सॉल्यूशन जबकि हमारा x इज ग्रेटर देन y, तो दिस विल बी फर्स्ट सॉल्यूशन जिसको हम कंसीडर करेंगे। when 17 is greater than 13, when x is greater than y। ओके, अब नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, 17 + 5 22, और यहाँ 13 - 2 11, फिर नेक्स्ट आएगा 9, फिर आएगा 7 एंड सो ऑन।
हर बार 2 सब्ट्रैक्ट होता रहेगा, और लास्ट सॉल्यूशन में क्या चाहिए, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -20। तो -17 -19 लास्ट सॉल्यूशन होगा -19, क्योंकि इसकी अगली वैल्यू क्या होगा -21, और y हमारा लेस देन -20 आ जाएगा। सो लास्ट सॉल्यूशन विल बी दिस वन। फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये रहा और लास्ट सॉल्यूशन ये रहा। हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज 13 देन 11। ठीक है, किसी भी एक के लिए काउंट कर लो, क्योंकि y के लिए काउंट करना इजी है, और कंडीशन हमें y पे ही गिवन है सेकंड वाला, y इज ग्रेटर इक्वल टू -20, क्योंकि हमें पता नहीं x कहां पे जाएगा, तो y पे ही हम, क्योंकि लिमिटेशन y पे लगा हुआ है इसलिए हमने y पे ही कैलकुलेशन किया अपना। अगर x पे लिमिटेशन लगा होता है कि x ग्रेटर इक्वल टू -50 -30, तो फिर x पे हम कैलकुलेशन करके देखते, या x खैर नेगेटिव तो जा ही नहीं रहा, x तो इंक्रीज हो रहा है, x लेस देन इक्वल टू 100 ऐसा कोई कंडीशन होता तो फिर x पे हम काउंट करते। ठीक है, सो 13 11 9 एंड सो ऑन टिल -19। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे, n विल बी इक्वल टू 13 माइनस -19 ओके डिवाइडेड बाई 2 +1। ठीक है, फिर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे उल्टा कर लिया मैंने, कॉमन डिफरेंस -2 की बजाय 2 कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आंसर हमारा सेम ही आएगा। 32/2 16 + 1 17 विल बी द आंसर। ठीक है, 17 विल बी द आंसर। अदरवाइज कोई भी तकलीफ है तो -19 -13 कर लो और डिवाइड बाई -2 कर लो, आंसर तब भी आएगा 16 + 1 17। क्लियर है, आंसर हमारा 17 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? अभी तो क्वेश्चन ईजी था इसलिए ऐसे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को फंसाना होगा तो क्या करेगा क्वेश्चन कि और बड़ी वैल्यूज देगा और साथ में तुम्हें और टिपिकल कंडीशन देगा। तुम्हें हो सकता है फोर्थ सॉल्यूशन जो हमें मिल गया इजीली, ऐसे ना मिले तो पता कैसे चलेगा x कब ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, कैसे पता करोगे? मैनुअली करते रहोगे तब तो करते ही रह जाओगे। तो हमारे पास एक बेटर सॉल्यूशन, बेटर मेथड होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो कि मैंने डिस्कस भी किया अपने सेशंस में। यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं जनरल सॉल्यूशन का केस। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन सबसे पहले निकाल लेते हैं, 2x + 5y दिस इज इक्वल टू 19। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आया हमारा व्हेन y इज इक्वल टू 19 एंड x इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 + 5 7 आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 19 - 2 17 आ जाएगा। या जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा हमारा, दिस विल बी 2 + 5n और दिस विल बी 19 - 2n। ठीक है, अगेन ये एपी का जनरल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो ये है, दिस इज सेकंड टर्म। ठीक है, दिस इज सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म मिलेगा, एन की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आंसर मिलता जाएगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें एपी नहीं बनानी है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट टर्म एपी का नहीं बनाना, हमें चाहिए एन का वैल्यू टोटल कितनी, जो क्वेश्चन जो कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसी कितनी वैल्यूज हमें मिलने वाली है एन की। ठीक है, तो उसके लिए फिक्र नहीं करना है। अगर उसकी फिक्र तुमको हो रही हो तो फिर मानोगे कि 2 + 5 × n - 1 एन टर्म बनाओगे। ठीक है, बट यहाँ पे जरूरत नहीं उसकी, क्वेश्चन एपी का थोड़ी, हम एपी को यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा 2 + 5n एंड 19 - 2n। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, दिस विल बी एनी जनरल सॉल्यूशन, और हमें चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू -20। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि 2 + 5n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 19 - 2n। तो 2n + 5n हो जाएगा 7n ग्रेटर देन इक्वल टू 17, n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 17/7, और 17/7 कितना आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो n will be greater than equal to 2 point something, यानी कि n will be greater than equal to 3 because n होगा तो इंटीजर। सेकंड कंडीशन इज y is greater than equal to -20, यानी कि 19 - 2n is greater than equal to -20, तो 2n will be less than equal to 19 + 20 39 and less than equal to 39/2, यानी कि n is less than equal to 19.5, और 19.5 क्योंकि इंटीजर तो है नहीं तो n will be less than equal to 19। सो n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 19, यानी कि n की वैल्यू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, टिल 19। कितनी वैल्यूज आ गई हमें, 19 - 3 + 1, टोटल वैल्यूज आई हैं 17, तो आंसर विल बी 17। क्या ये मेथड समझ में आता है? देखो इस क्वेश्चन में इस मेथड को यूज नहीं करेंगे हम, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो रहा है, बट अगर क्वेश्चन ज्यादा टिपिकल होगा, वैल्यूज हमारा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी और बीच में कहीं पे 10 20 50 वैल्यूज के बाद में हमें अपना फेवरेबल सॉल्यूशन मिल रहा होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो वहां तक हम मैनुअली तो नहीं निकाल पाएंगे, तो वहां पे हमें ऐसे जनरल सॉल्यूशन पे काम करना पड़ेगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, ओके, क्या ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, A gentleman decided to treat a few children in the following manner. He gives half of his total stock of toffees and one extra to the first child, and then half of the remaining stock along with one extra to the second, and continues giving away in this fashion. His total stock exhausts after he takes care of 5 children. How many toffees were there in his stock initially?
टोटल स्टॉक इनिशियली कितना था, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन को हमें हमेशा रिवर्स सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि लास्ट से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट पे पहुंचेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 5, ठीक है। ऐसे समझो कि लेट अस से इनिशियली 14 चॉकलेट्स थी, ओके। तो जेंटलमैन करेगा क्या, 14 में से हाफ चॉकलेट्स, ही गिव्स हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक ऑफ टॉफीज एंड वन एक्स्ट्रा टू द फर्स्ट चाइल्ड। चाइल्ड नंबर 1 को he will be given 7 chocolates, half of the total stock, plus 1 extra, 8 चॉकलेट्स दे दी। अब चॉकलेट्स बची कितनी, 8 बची हैं, 8 चॉकलेट्स बची हैं, ठीक है। अब अगले चाइल्ड को क्या करेगा, चाइल्ड नंबर 2 को हाफ ऑफ 8 यानी कि 4 चॉकलेट्स देगा, प्लस 1 एक्स्ट्रा दे देगा, ठीक है। अब चॉकलेट्स बची हैं 3 एंड सो ऑन, प्रोसीड करेगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हमें रिवर्स देखना होगा, ओके। क्लियर है, ठीक है। तो फ्रेश पेज पे करते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 5, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, चाइल्ड 4 एंड चाइल्ड 5, एंड ही इज गिविंग हाफ ऑफ हिज स्टॉक टू अ चाइल्ड एंड 1 एक्स्ट्रा। फाइनली हिज टोटल स्टॉक एग्जॉस्ट, यानी कि आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता है आफ्टर ही टेक्स केयर ऑफ द 5th चिल्ड्रन। 5th चिल्ड्रन के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचने वाला, और 5th चिल्ड्रन चाइल्ड को वो क्या देने वाला है, हाफ द स्टॉक प्लस 1 एक्स्ट्रा, isn't it so? 5th चाइल्ड को देने वाला है हाफ द स्टॉक प्लस 1 एक्स्ट्रा, isn't it so? तो अगर उसने हाफ द स्टॉक दिया यानी n/2 दे दिया उसने, अगर n चॉकलेट्स लास्ट में बची थी तो n/2 चॉकलेट्स दे दी प्लस 1 एक्स्ट्रा दे दी, और अगर 1 एक्स्ट्रा देने के बाद में उसका स्टॉक खत्म हो गया यानी कि दिस इज इक्वल टू n, दिस इज इक्वल टू 1, यानी n/2 इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 चॉकलेट्स उसके पास बची थी आफ्टर द 4th चाइल्ड। उसने लास्ट वाले को क्या दिया, 2 का हाफ दिया यानी 1 दी और प्लस 1 और दी, दैट इज वाई हिज टोटल चॉकलेट्स एग्जॉस्टेड। तो 2 आर द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिमेनिंग बिफोर द फाइनल चाइल्ड, बिफोर द 5th चाइल्ड। तो 4th चाइल्ड के बाद में 2 चॉकलेट्स बची थी, 4th चाइल्ड को उसने कितना दिया, 1 एक्स्ट्रा दी थी, तो 2 प्लस 1 3 हो गई, 3 थी, हाफ देने के बाद हाफ ऑफ द चॉकलेट्स देने के बाद में, यानी कि हाफ ऑफ द चॉकलेट्स मस्ट हैव बीन इक्वल टू 3, टोटल चॉकलेट्स मस्ट हैव बीन इक्वल टू 6। तो 4th चाइल्ड को दिया 3 यानी हाफ प्लस 1, क्लियर है। अब 3rd चाइल्ड को दिया था 1 एक्स्ट्रा, तो 6 प्लस 1 7 मस्ट हैव बीन हाफ द स्टॉक, यानी कि 3rd चाइल्ड से पहले स्टॉक रहा होगा 14 का, और 3rd को दिया 7 प्लस 1, ठीक है। 2nd चाइल्ड को दिया होगा 1 प्लस हाफ द स्टॉक, यानी कि 1 प्लस 14 इज हाफ द स्टॉक, तो 15 अगर हाफ है तो 30 विल बी टोटल, यानी कि 2nd चाइल्ड को दिया 15 प्लस 1। सेम फॉर द फर्स्ट चाइल्ड को दिया है 1 प्लस हाफ द स्टॉक, यानी हाफ द स्टॉक कितना रहा होगा, 1 प्लस 30 31, ठीक है। तो 31 प्लस 1 32 चॉकलेट्स दी है उसने फर्स्ट चाइल्ड को, और 30 बच गई उसके बाद में। नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना हो गया, 31 प्लस 1 प्लस 30 यानी कि 62 चॉकलेट्स, दैट विल बी द आंसर। क्लियर है, 62 चॉकलेट्स हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, next is Arun bought some pencils and sharpeners, spending the same amount of money as Arun. Aditya bought twice as many pencils and 10 less sharpeners. तो अरुण और आदित्य की कहानी है, और some pencils were bought by Arun and some sharpeners as well. Okay, let's say a number of pencils are bought by Arun and b sharpeners. और आदित्य ने twice as many pencils परचेज किए हैं, यानी कि 2a pencils परचेज की होंगी, और शार्पनेस कितने परचेज किए हैं, 10 लेस, यानी कि b minus 10 आर द नंबर ऑफ शार्पनेस। कॉस्ट ऑफ 1 शार्पनर इज ₹2 मोर देन द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल। कॉस्ट ऑफ द पेंसिल से कॉस्ट ₹2 ज्यादा है शार्पनर का, तो अगर पेंसिल का कॉस्ट हम मान लें, कॉस्ट पर हेड या कॉस्ट पर यूनिट, पेंसिल का कॉस्ट पर यूनिट अगर हम एज्यूम कर लें p, तो शार्पनर कॉस्ट हो जाएगा p+2। तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट बाय अरुण एंड आदित्य टुगेदर। हमें क्या करना है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट बाय अरुण एंड आदित्य टुगेदर। अरुण ने परचेज किए ए पेंसिल्स, आदित्य ने परचेज किए 2a, यानी टोटल 3a का मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। मिनिमम वैल्यू ऑफ 3a, ओके। अब देखो यहां भी सेम तरह से समझो, ऐसे समझो कि अगर आदित्य ने
सेम अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि स्पेंड किया है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाई अरुण एज वेल एज आदित्य इज सेम। ओके, सो अगर आदित्य ने ए ही पेंसिल्स परचेज की होती तो वो बी शार्पनर्स परचेज कर पाता, इजंट इट सो? बट आदित्य ने किया क्या, नंबर ऑफ पेंसिल्स अपनी ज्यादा परचेज की, दैट इज वाई वो शार्पनर्स कम परचेज कर पाया। तो जितने उसने शार्पनर कम परचेज किए उसी अमाउंट से तो उसने पेंसिल्स परचेज किया, इजंट इट सो? तो या तो इक्वेशन बना लो या फिर ऐसे समझ लो, तो आदित्य ने ए पेंसिल्स एक्स्ट्रा परचेज किए और पर पेंसिल कॉस्ट है हमारा पी, तो ए इंटू पी इज द कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स एक्स्ट्रा दैट आर परचेज बाई आदित्य। और ये कॉस्ट वही सेम कॉस्ट होगा जो कि 10 शार्पनर्स को परचेज करने में कॉस्ट लगता है, क्योंकि उसी कॉस्ट से तो परचेज किया है। तो ए इंटू पी इज इक्वल टू 10 इंटू पी प्लस 2। तसल्ली से सोच लो, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर लो इनको, ठीक है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके देख लो, टोटल निकाल लो, फाइनली यही इक्वेशन मिलने वाला है तुमको। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए पी प्लस बी इंटू पी प्लस 2, दैट इज इक्वल टू ए पी प्लस बी माइनस 10 इंटू पी प्लस 2। सो दिस विल बी ए पी प्लस बी पी प्लस 2b इज इक्वल टू 2ap प्लस bp प्लस 2b माइनस 10p माइनस 20। ठीक है, तो bp से bp कैंसिल आउट हो गया, 2b से 2b कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली ap इज इक्वल टू 10p प्लस 20। या और यही सेम चीज तो हम यहां पे लिख रहे हैं, बिकॉज आदित्य ने जितने एक्स्ट्रा पेंसिल परचेज किए उतना ही कम वो शार्पनर्स परचेज कर पाया, यानी कि ए एक्स्ट्रा पेंसिल्स परचेज किया तो ए इंटू पी इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स एक्स्ट्रा परचेज बाय आदित्य एंड दैट इज इक्वल टू 10 इंटू पी प्लस 2, जितने वो शार्पनर्स कम परचेज कर पाया। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 3a को मिनिमाइज करना है। अब 3 तो कांस्टेंट है तो a को मिनिमाइज करना है अल्टीमेटली। ठीक है, सो ए पी इज इक्वल टू 10p प्लस 20, यानी कि ए पी माइनस 10p दिस इज इक्वल टू 20, यानी कि a माइनस 10 इंटू p दिस इज इक्वल टू 20। ओके, a माइनस 10 इंटू पी इज इक्वल टू 20। अब अगर हमें a को मिनिमाइज करना है तो a माइनस 10 को ही मिनिमाइज करोगे, बिकॉज 10 तो कांस्टेंट है। अगर a कम होगा तो a माइनस 10 भी कम होगा, तो a माइनस 10 को मिनिमाइज कर देते हैं, और अगर a माइनस 10 मिनिमाइज हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, p को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और दोनों ही वैल्यूज, दोनों में से हमें p के बारे में तो पता नहीं, बट a माइनस 10 डेफिनेटली एक इंटीजर वैल्यू होगा, बिकॉज a इज नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज्ड, नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज्ड बाई अरुण। अरुण ने a परचेज किए तो डेफिनेटली a एक इंटीजर होगा। देखो आदित्य ने तो 2a किए हैं तो a हाफ भी हो सकता था। ठीक है, ए एक फॉर एग्जांपल ए 5/2 भी हो सकता था, क्योंकि आदित्य ने 2a परचेज किए हैं तो वहां से हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि ए एक इंटीजर होगा, बट क्योंकि अरुण ने ए नंबर ऑफ पेंसिल्स परचेज किया है, उसने ऐसा नहीं 3/2 पेंसिल्स परचेज किया होगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स मस्ट बी इंटीजर, सो दैट इज वाई ए विल बी इंटीजर। और अगर ए इंटीजर है, ए माइनस 10 भी एक इंटीजर आएगा, तो इंटीजर रखना है तुम्हें ए माइनस 10 को, और कम से कम वैल्यू रखना है, तो कितना रखोगे, 1 रख दोगे, 1 रख दो। ठीक है, तो ए माइनस 10 को इक्वल टू 1 रख दो, और अगर 1 रख दिया यहाँ पे तो पी आ जाएगा हमारा 20, लेकिन हमें पी की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू ए का मिनिमम वैल्यू, तो ए माइनस 10 हमारा 1 आ गया, सो a विल बी इक्वल टू 11, और ये मिनिमम वैल्यू है, तो a मिनिमम इज 11, तो 3a मिनिमम आ जाएगा हमारा 33, ऑप्शन सी। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, a का मिनिमम वैल्यू हमारा आ गया 11, क्योंकि a माइनस 10 का मिनिमम वैल्यू है 1। ओके, क्लियर है? अगर क्वेश्चन में और एडिशनल कंडीशन होता कि प्राइस ऑफ द पेंसिल इज लेस देन 8, ऐसा भी कुछ कंडीशन हो सकता था, तो फिर हमें एडिशनली उसको सोचना पड़ता। क्वेश्चन कहता है प्राइस ऑफ द पेंसिल इज एटलीस्ट मैक्सिमम रुपीज 8, अगर मैक्सिमम रुपीज 8 होता तो p हमारा 8 से बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता था, उस अकॉर्डिंग फिर हम सोचते, तो फिर वहां पे p इज इक्वल टू मैक्सिमम 5 ही ले पाते, क्योंकि a माइनस 10 को इंटीजर भी रखना था। ओके, फिर a माइनस 10 हमारा 4 आ जाता, a 14 आ जाता, अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेते। तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन को फंसाना होगा तो फिर एक एडिशनल कंडीशन और जोड़ देगा, और कुछ थोड़ी। घबराओगे नहीं क्वेश्चन में, दिमाग फोकस्ड रखोगे, शांत रखोगे, काम रखोगे, और क्वेश्चन को एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहोगे, तो क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करोगे या फंसोगे नहीं उसमें, या सॉल्व कर पाओगे इजीली। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a 6-digit number, the 6th, that is the rightmost digit, is the sum of first 3 digits, the 5th digit is the sum of first 2, the 3rd digit is equal to first digit, 2nd digit is twice the first digit, and 4th digit is the sum of first, 5th and 6th। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द 4 डिजिट क्या होगा? बिल्कुल शांति से पहले लिखो 6 डिजिट्स को, ए बी सी डी एफ 6 डिजिट नंबर है। राइट मोस्ट डिजिट इज द 6th डिजिट। ठीक है, काउंटिंग में ध्यान रखना है 6 डिजिट कौन सी है, राइट मोस्ट, यानी कि दिस इज फर्स्ट, दिस इज 2 3 4 5 6, प्लेस वैल्यू लिखा है ये। ठीक है, प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो 6th डिजिट इज सम ऑफ फर्स्ट 3, यानी कि f इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। 5th डिजिट इज सम ऑफ फर्स्ट 2, यानी कि e
इज इक्वल टू ए प्लस बी। थर्ड डिजिट इज इक्वल टू फर्स्ट डिजिट, यानी कि सी इज इक्वल टू ए, एंड सेकंड डिजिट इज ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि बी इज इक्वल टू ए। अब देखो सी इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू ए है, और एफ हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, तो एफ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, बी यानी कि 2a, सी यानी कि ए, एफ विल बी इक्वल टू 4a। सिमिलरली ई क्या है, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस 2a, यानी कि ई विल बी इक्वल टू 3a। ओके, फिर क्वेश्चन कह रहा है फोर्थ डिजिट इज सम ऑफ फर्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ डिजिट डी है, डी इज इक्वल टू ई प्लस एफ। तो डी क्या आ जाएगा, 4a प्लस 3 यानी कि 7a। और क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फोर्थ डिजिट क्या होगा। तो जब फोर्थ डिजिट हमारा d इज इक्वल टू 7a है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल क्या है, a की वैल्यू पॉसिबल है, बिकॉज अगर 6 डिजिट नंबर है, a हमारा 0 हो नहीं सकता, a 1 ही हो पाएगा, और d एक डिजिट है, तो d मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9, तो a कैन ओनली बी इक्वल टू 1। 0 हो नहीं सकता है बिकॉज 6 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, और 2 भी नहीं ले पाओगे, जैसे ही a 2 हो जाएगा d हमारा 14 आ जाएगा, 14 होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि देयर इज ओनली वन वैल्यू पॉसिबल। तो लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू भी 7 होगा, और द ओनली पॉसिबल वैल्यू भी 7 ही होगा। क्लियर है, तो d इज इक्वल टू 7 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, और नंबर हमारा क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 1 है, b आया है 2, c भी 1 है, और d आ रहा है 7, e आ रहा है 3, और f आ रहा है 4। 1 2 1 7 3 4, दिस इज द नंबर, ओनली सच नंबर, ओनली नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशंस। बट आंसर तो हमारा डी है, यानी आंसर तो 7 है। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फोर डिजिट दैट इज इक्वल टू 7। ओके, क्लियर है बात, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया, जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए सेशन में, तुम्हें समझ में आएंगे, और सारे क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कहीं भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, और अगर सेशन पसंद आया है तो अपना फीडबैक भी जरूर से जरूर मेंशन करना है कमेंट्स में। और एडिशनली अगर सेशन को लाइक नहीं किया अब तक और सेशन पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक जरूर करना है, ठीक है। लाइक और कमेंट जरूर करो अगर अपने एंड पे तुम अप्रिशिएट करना चाह रहे हो और तुम्हें समझ में आनी चीज़ है, ठीक है। और एडिशनली नेक्स्ट सेशन में फिर हम करते हैं आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर आगे प्रोग्रेशन सीरीज और बाकी जो अलजेब्रा में टॉपिक्स रखे उनको भी कवर करेंगे। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।